بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل سبق کہانی میں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ خلیفہ ہارون رشید کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ اکثر رات کو بھیس بدل کر بغداد میں گھما پھرا کرتے تھے تاکہ وہ اپنی رعایا کا حال خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ ان کا وزیر جعفر ہمیشہ ان کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ ایک دن جب وہ پل پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک اندھا پالتی مارے بیٹھا ہے اور بھیک مانگ رہا ہے۔ خلیفہ نے ایک دینار اس کے ہاتھ پر رکھ دیا، لیکن فقیر نے خلیفہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، اے میرے مالک، تو نے جس ہاتھ سے مجھے خیرات دی ہے اسی ہاتھ سے میرے منہ پر تھپڑ مار۔ خلیفہ کے کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کرے، لیکن جب تک خلیفہ نے اس کو تھپڑ نہیں مارا فقیر نے اسے وہاں سے ہلنے نہیں دیا۔ خلیفہ نے کہا، بڑے میاں، یہ کیا ظلم ہے کہ میں کسی بوڑھے آدمی کو اپنے ہاتھ سے ماروں اور بلا وجہ گنہگار ہوں۔ فقیر نے کہا، بابا مجھے معاف کرنا، میں مجبور ہوں، اس لیے کہ میں نے عہد کیا ہے کہ جو کوئی مجھے خیرات دے گا اسی کے ہاتھوں تھپڑ کھاؤں گا، اور جب تک تم کو یہ معلوم ہوگا کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے تو تم کو بھی میرے اوپر ترس نہ آئے گا۔ آخر مجبوراً خلیفہ نے اس کے تھپڑ مارا اور وہاں سے آگے بڑھا۔ ذرا سی دور جا کر خلیفہ نے وزیر جعفر سے کہا، ضرور اس بوڑھے کا حال معلوم کرنا چاہیے کہ اس نے اتنا عجیب و غریب عہد کیا ہے۔ تم ایسا انتظام کرو کہ کل صبح یہ فقیر میرے دربار میں آئے۔ جعفر نے کہا، جیسا امیر المومنین کا حکم ویسا ہی ہوگا۔ اب خلیفہ اور آگے بڑھ گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ سامنے ایک آدمی بیٹھا ہے۔ اس نے سر اٹھایا اور کہکا لگا کر کہا، خدا کی قسم، جب بچوں کو پڑھاتا تھا تب بھی اتنا روپیہ نہیں کمایا۔ خلیفہ یہ سنتے ہوئے آگے بڑھے اور بولے، جعفر، یہ آدمی استاد تھا لیکن اس کے باوجود بھیک مانگ رہا ہے، اس کا قصہ بھی سننا چاہیے، اسے بھی کل صبح دربار میں حاضر کرو۔ جعفر نے کہا، جیسا حکم امیر المومنین کا ویسا ہی ہوگا۔ ذرا سی دور جانے کے بعد ان کی نظر ایک بڑی خوبصورت سفید گھوڑی پر پڑی۔ اس پر ایک نوجوان سواری کر رہا تھا اور اس کو بڑی بری طرح پیٹ رہا تھا۔ اس کے آس پاس کچھ لوگ کھڑے بڑی بے بسی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ اس طرح پیٹ رہا تھا کہ گھوڑی کے منہ سے کف نکلنے لگا تھا اور اس کی بری حالت تھی۔ خلیفہ کو اس غریب جانور پر بڑا ترس آیا۔ اس نے راستہ چلنے والوں سے پوچھا، یہ کیا تماشا ہے کہ ایک آدمی ایک بے زبان جانور کو اس بری طرح پیٹ رہا ہے اور تم لوگ کھڑے دیکھ رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ آدمی ایسا کیوں کرتا ہے، البتہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی روزانہ اسی وقت یہاں آتا ہے اور اسی طرح اس گھوڑی کو مارتا ہے، لیکن یہ گھوڑی اس کی اپنی ہے، جو چاہے سو کرے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ خلیفہ نے وزیر جعفر سے کہا، کل صبح اس نوجوان کو بھی حاضر کرو تاکہ میں اس کا حال بھی معلوم کروں۔ جعفر نے کہا، جیسا امیر المومنین کا حکم ویسا ہی ہوگا۔ اب خلیفہ اور آگے بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی دونوں ہاتھوں سے خیرات بانٹ رہا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید اس آدمی کو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک عام آدمی اس طرح خیرات کرے۔ خلیفہ نے کہا، اے جعفر، کل صبح یہ آدمی بھی حاضر ہو تاکہ مجھے اس کی اتنی بہت سی دولت کا حال بھی معلوم ہو۔ اس کے بعد خلیفہ ہارون رشید اپنے محل واپس چلے گئے۔ اگلے دن خلیفہ دربار میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ چاروں آدمی پہلے سے وہاں موجود تھے جنہیں خلیفہ نے پچھلی رات کو بلایا تھا۔ خلیفہ نے سب سے پہلے اس نوجوان کو اشارہ کیا جو اپنی گھوڑی کو بری طرح پیٹ رہا تھا اور اس سے بولا، اے نوجوان، کل رات میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تم اپنی گھوڑی کو اس بری طرح پیٹ رہے تھے کہ وہ لہو لہان ہو گئی تھی، اور لوگوں کا کہنا تھا کہ تم اس کے ساتھ روزانہ یہی سلوک کرتے ہو۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ جانور بے زبان ہوتا ہے اور سب کچھ خاموشی سے برداشت کرتا ہے۔ اگر تم اس کا معقول سبب نہیں بتاؤ گے تو میں تم کو بڑی سخت سزا دوں گا۔ یہ سنتے ہی نوجوان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ خلیفہ نے کہا، اے نوجوان، تم کسی سے مت ڈرو اور اپنی بات کہو۔ قصہ سیدی نعمان کا۔ اس نوجوان نے یہ سن کر اپنی داستان بیان کی اور بولا، اے امیر المومنین، میرا نام سیدی نعمان ہے۔ میرا باپ بہت مال دولت چھوڑ کر مرا۔ میں بڑے عیش و آرام کی زندگی گزارا کرتا تھا، لیکن میں نے شادی نہیں کی۔ یہ سوچتا تھا کہ یہی زندگی سب سے اچھی ہے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد مجھے خیال آیا کہ میرا گھر بھی بس جائے، میرے گھر میں بھی بچوں کی آوازیں سنائی دی۔ اس خیال کا آنا تھا کہ میں نے سوچا کہ میں کسی خوبصورت سی لڑکی سے شادی کروں، لیکن مجھے بچپن ہی سے رسم و رواج سے چڑ تھی، اس لیے میں نے سوچا
कि कहीं से कोई बिल्कुल अजनबी लड़की ले आऊं और उससे शादी करूं। ये सोचकर मैंने तय किया कि जहां गुलामों का बाजार लगता है वहां से कोई खूबसूरत सी लड़की ले आऊं जिसका कोई रिश्तेदार भी ना हो। मैं उस बाजार में जैसे ही दाखिल हुआ, मेरी नज़र एक बहुत खूबसूरत गोरी चिट्टी लड़की पर पड़ी। हालांकि बाजार में सारी दुनिया की मुख्तलिफ मुल्कों की एक से एक लड़कियां थी, लेकिन मुझे जो लड़की पसंद आई वो उनमें से सबसे खूबसूरत और अनोखी सी थी। मैंने बाजार की सैर की, लेकिन हर बार घूम फिर कर उसी लड़की के पास आकर खड़ा हो जाता था। मैंने सच पूछिए तो इतनी खूबसूरत लड़की इससे पहले कभी नहीं देखी थी। मैं आपके सामने उसकी खूबसूरती किन अल्फाज में बयान करूं, आप इतने नरम और रेशमी बालों का तस्वर भी नहीं कर सकते। लोग खूबसूरत हिरन की आंखों की तारीफ करते हैं, चकोर की चाल की बड़ाई करते हैं, लेकिन सच पूछिए तो वो इन सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। मैंने मुंह मांगे दाम दिए और उसको अपने घर ले आया। खुदा का शुक्र अदा किया, उसके आते ही मेरे घर में हर तरफ उजाला हो गया। रात को जब हम लोग खाना खाने बैठे तो मैंने उस लड़की में एक अजीब बात महसूस की। जब मैंने उसके बालों को छुआ तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैंने ठंडे ठंडे और नरम नरम रेशम के तारों को छू लिया है। अब मुझे वो हर तरह से एक अजीब व गरीब चीज मालूम होने लगी। वो हमारे तौर तरीकों को भी नहीं समझती थी। मैंने सोचा कि धीरे धीरे सब सीख जाएगी। जब हमारे सामने खाना लगाया गया तो मैंने अपने हाथों से खाना शुरू किया, लेकिन देखता क्या हूं कि उसने अपने पास से एक बारीक सी हड्डी निकाली। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी नन्हे से मुर्दा बच्चे की हड्डी हो, और उसने बड़े आहिस्ता आहिस्ता एक एक चावल का दाना उठाकर खाना शुरू कर दिया। उसने मुश्किल से 10-12 दाने खाए होंगे कि अपना हाथ रोक लिया। मैंने सोचा कि शायद इसने पहले रोज तकल्लुफ किया हो। यह भी हो सकता है कि इसके मुल्क में लोग इस तरह खाना खाते हों, इसलिए मैंने उससे कुछ नहीं कहा। मैंने उसके सोने के लिए एक बड़ा अच्छा कमरा तैयार किया था और उसे बहुत आराम से वहां सुला दिया। अगले रोज सुबह को मैंने सोचा कि आज उसके लिए अंग्रेजी किस्म का खाना तैयार करवाऊं। शायद उसे हमारा खाना पसंद ना हो, लेकिन मेरी बीवी ने उस दिन भी इसी तरह खाना खाया। अब तो मैं परेशान हो गया कि आखिर ये इतना खाकर कैसे जिएगी, लेकिन ये तो उसका रोज का तरीका था। वो मुझसे बात भी न करती थी और उसका तरीका भी ऐसा था कि खुद मेरी हिम्मत न पड़ती थी कि मैं उससे बात करूं। इस तरह 2 हफ्ते गुजर गए। मैं बयान नहीं कर सकता कि ये 2 हफ्ते मैंने कैसे गुजारे। आखिर एक दिन मैंने सोचा कि उसके कमरे में जाकर देखूं वो क्या करती है। मैंने आहिस्ता से दरवाजा खोला तो कमरा खाली था, लेकिन अचानक मेरी नजर जो पिछले दरवाजे पर पड़ी, क्या देखता हूं कि वो बड़े आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे से निकल रही है और उसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही हैं। उसके सर का एक एक बाल खड़ा हुआ है। मैं उसको इस आलिम में देखकर कांप उठा। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा खून जम कर रह गया। मैंने तय कर लिया कि मैं इसके पीछे पीछे जाऊंगा और देखूंगा कि वो कहाँ जा रही है। वो शहर के रास्तों से इस तरह गुजर रही थी जैसे वो हमेशा से यहाँ रहती आई हो और तमाम रास्तों को अच्छी तरह पहचानती है। आखिरकार वो आबादी से निकलकर वीराने में दाखिल हुई। फिर उसने कब्रिस्तान का रुख किया। मैंने सोचा कि शायद यहाँ उसके किसी रिश्तेदार की कब्र हो। मैं एक कब्र की आड़ लेकर बैठ गया। क्या देखता हूँ कि एक कब्र में से जैसे कोई साया सा निकला। उस साये ने एक नए मरे हुए आदमी का सर एक थाली में रखकर उसको पेश किया। उसको देखकर मेरी बीवी की आंखें चमक उठी और उसने अपने दांतों से काट काट कर खाना शुरू किया। यह मंजर देखकर मेरे मुंह से चीख निकल पड़ी। वह एकदम से पलटी और उसने मुझे जो देखा तो ऐसे जैसे कोई भूखी शेरनी अपने शिकार को देखती है, और उसने मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाना शुरू किया। मेरी समझ में कुछ न आया कि वो क्या कह रही है। फिर उसने पढ़कर जो फूका तो मैं कुत्ता बन गया। इतने में न जाने कितने साए मुझ पर टूट पड़े और उन्होंने मुझे जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। मैं तो समझा कि अब मैं मर जाऊंगा, लेकिन फिर जो मैं एक बार भागा तो कब्रों पर से कूदता निकल गया। उन्होंने कुछ दूर तक मेरा पीछा किया, लेकिन फिर छोड़ दिया। मैं गिरता पड़ता शहर में दाखिल हुआ, लेकिन यहाँ पर कुत्तों ने मेरा पीछा किया। अब मैं उन कुत्तों से बचने की कोशिश कर रहा था। मुझे एक दुकान दिखाई दी। मैं उस दुकान में दाखिल हो गया। ये दुकान एक कसाई की थी। कसाई ने कुत्तों को भगाया और मेरे सामने गोश्त का एक टुकड़ा डाल दिया। मैं उसके पास पहुंचा और दुम हिलाने लगा। मैं उसको ये बताना चाहता था कि मुझे गोश्त का लालच नहीं है, बल्कि मैं तो तेरे कदमों में पड़ा रहना चाहता हूँ। उसने मुझे मारने के लिए एक लकड़ी उठाई, चुनाचे मैं उस दुकान से निकल कर भागा। उसके पास ही एक नान भाई की दुकान थी। वो बैठा रोटी खा रहा था। उसने मुझे देखकर एक रोटी का टुकड़ा मेरी तरफ फेंका। मैंने उसे उठा लिया और दुम हिलाने लगा, जैसे उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। उस नान भाई ने जैसे मेरे दिल की बात समझ ली। उसने मुझे रहने के लिए अपनी दुकान का एक कोना दे दिया। अब मैं बड़े आराम से उस कोने में पड़ा रहा। वो हर तरह से मेरा ख्याल रखता,
और मैं भी उससे बहुत मायूस हो गया। अब तो मैं हर वक्त उसके पास रहता, जब वो कहीं जाता सीटी बजाता और मैं उसके साथ हो लेता। इस तरह नान भाई के यहाँ रहते हुए मुझे कई हफ्ते हो गए। इत्तेफाक से एक रोज एक बूढ़ी औरत दुकान में रोटी खरीदने के लिए आई। वो पैसे देकर दुकान से बाहर जा रही थी कि नान भाई ने सिक्कों को परखा तो क्या देखता है कि उसमें एक सिक्का खोटा है। उसने बुढ़िया को आवाज देकर कहा, बड़ी भी, अगर पुराना मानो तो ये सिक्का वापस ले लो और दूसरा सिक्का दे दो। बुढ़िया ने गुस्सा होकर कहा, वाह, दूसरा क्यों दे दूं? क्या ये सिक्के मेरे बनाए हुए हैं? बड़ा आया कहीं से दूसरा सिक्का लेने वाला। अब तो नान भाई को भी गुस्सा आ गया। उसने कहा, ये खोटा सिक्का लेकर क्या करूंगा? उसे तो ये कुत्ता भी देख कर बता सकता है कि खोटा है। चुनाचे उसने बुढ़िया को जलील करने के लिए वो तमाम सिक्के मेरे सामने फेंक दिए और पूरा जरा देख कर तो बता, इसमें कौन सा खोटा है? मैंने अपने पंजों से एक एक सिक्के को हटाया और खोटा सिक्का निकाल दिया। ये देख कर नान भाई हैरत में रह गया और चीख कर बोला, अरे देखो तो खुदा की कुदरत, ये कुत्ता कितना होशियार है कि उसने ये खोटा सिक्का पहचान लिया। बुढ़िया बेहद शर्मिंदा हुई और उसने फौरन दूसरा सिक्का दे दिया और चुपचाप चली गई। अब तो नान भाई इतना खुश हुआ कि उसने पास पड़ोस के दुकानदारों को बुलाया और मेरा ये कारनामा खूब बढ़ा चढ़ा कर लोगों को सुनाया। ये सुनकर हर एक हैरत में पड़ गया, क्योंकि किसी ने ऐसा कुत्ता नहीं देखा था जो खरे खोटे में फर्क कर सके। अब तो ये हाल था कि जिसे देखिए खोटे सिक्के लाकर मेरा इम्तिहान ले रहा था। मैं भी बड़ी फुर्ती के साथ खरे सिक्कों में से खोटे सिक्के को ढूंढ लेता। अब तो मेरी शोहरत दूर दूर तक पहुंच गई और लोग बड़े शौक से मुझे देखने आते। नान भाई की दुकान पर मुझे देखने के लिए हर वक्त भीड़ लगी रहती और उसकी दुकान खूब चलने लगी। कसाई ये देखकर जलने लगा। वो सड़क के कुत्तों को मेरी तरफ दौड़ाता, लेकिन नान भाई खूब अच्छी तरह मेरी हिफाजत करता, इसलिए मुझे किसी का डर न लगता। उसके अलावा तमाम आने जाने वाले मुझे पहचानने लगे थे, इसलिए जहां कोई मुझे देखता तो वो दूसरे कुत्तों से खुद ही मुझे बचाता। गर्ज इस तरह मेरी जिंदगी बड़े मजे में गुजर रही थी। एक दिन एक बुढ़िया उसकी दुकान में रोटी लेने आई। उसके पास एक खोटा सिक्का था। उसने और लोगों की तरह बहुत से सिक्कों में ये सिक्का डालकर मेरे सामने फेंक दिया। मैंने पंजों से वही सिक्का उठा लिया। उस औरत पर इसका बड़ा असर हुआ। जब वो बाहर जाने लगी तो उसने मुझे इशारा किया। मैं उसके पीछे पीछे हो लिया। ये औरत मुझे अपने साथ लेकर घर में दाखिल हुई। मुझे बड़े प्यार से अंदर ले गई। वहां कमरे में एक लड़की बैठी थी। वो कारचुबी काम के बड़े खूबसूरत कपड़े पहने हुई थी। बुढ़िया ने कहा, बेटी, यही वो कुत्ता है जो खरे खोटे सिक्के पहचान लेता है, लेकिन मुझे ये आम कुत्तों जैसा नजर नहीं आता। इसमें कोई खास बात जरूर है। बुढ़िया की ये लड़की जादू जानती थी। वो बोली, अम्मा, अगर ये बात है तो अभी मालूम हो जाएगा। मैं अभी अपना काम करती हूँ। ये लड़की पानी से भरा हुआ एक बर्तन लेकर आई। उसने मुंह ही मुंह में कुछ पड़कर फूंक मारी और उसमें से कुछ पानी हाथ में लेकर मेरे ऊपर छिड़का और बोली, अगर तुम वाकई कुत्ते हो तो कुत्ते रहो, लेकिन अगर तुम आदमी हो तो अपनी सूरत पर आ जाओ। उसकी जुबान से ये अल्फाज निकले थे कि मैं फिर आदमी की तरह खड़ा हो गया। मैं आंखें फाड़े इधर उधर देख रहा था। फिर एकदम से मैं उसके कदमों में गिर पड़ा और मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। खुदा करे कि तुम बहुत दिन जिंदा रहो। तुमने मेरे साथ जो एहसान किया है मैं उसे जिंदगी भर नहीं भूल सकता और कभी उसकी कीमत नहीं चुका सकता। फिर मैंने उनको अपना सारा हाल सुनाया। उन्होंने एक एक लफ्ज बड़े गौर से सुना। बुढ़िया ने कहा, तुम खुदा का शुक्र अदा करो कि फिर से आदमी बन गए, वरना सारी जिंदगी यूं ही गुजर जाती। अलबत्ता ये तुमने क्या किया था कि अपने शहर को छोड़कर एक अजनबी औरत से शादी कर ली। तब मैंने उससे कहा, अम्मा, मुझसे बड़ी गलती हुई और खुदा ने मुझे उसकी पूरी पूरी सजा दे दी। अब मेरी दरख्वास्त है कि अगर मुझे अपनी लड़की के लायक समझे तो मैं आपकी लड़की से शादी कर लूँ। बुढ़िया ने अपनी लड़की से पूछा, बेटी, तुम भी बताओ, क्या तुमको ये रिश्ता पसंद है? मुझे तो ये नौजवान बहुत अच्छा मालूम होता है। लड़की ने कहा, अम्मा, जैसी तुम्हारी मर्जी, मुझे इसमें क्या उज़र है, लेकिन अभी तो इनको उस चुड़ैल से बचाना है, कहीं वो फिर उनको मुसीबत में न डाल दे, इसलिए उसका कोई इंतजाम करना चाहिए। ये कहकर वो अंदर गई और जरा सी देर बाद वापस आकर बोली, मैंने अपनी किताबों में देखा वो औरत मौजूद है, लेकिन इस वक्त वो घर से बाहर है। उसने नौकरों पर भी असर डाला है। गोया तुम्हारे ना होने से वो बहुत परेशान है। तुम इस वक्त उसके पहुंचने से पहले सीधे घर जाओ और थोड़ा सा पानी अपने साथ ले जाओ। जैसे वो घर में दाखिल हो उस पर पानी छिड़क देना और कहना, बस अब तुम औरत से घोड़ी बन जाओ। वो फौरन घोड़ी बन जाएगी। उसके बाद तुम उसको खूब चाबुक से मारना, इतना मारना कि उसके जिस्म से खून निकलने लगे, और इसी तरह रोजाना पिटाई करना। अगर तुम ऐसा ना करोगे तो मुसीबत में फंस जाओगे। मैं अपने घर पहुंचा। जरा सी देर में वो घर में दाखिल हुई। मैं पहले से तैयार था। उसे देखते ही मैंने उस पर पानी छिड़क दिया और कहा, ए चुड़ैल, अब तू औरत से घोड़ी बन जा।
मेरी जुबान से ये अल्फाज निकलने थे कि वो घोड़ी बन गई। उसके बाद मेरा ये रोज का प्रोग्राम बन गया कि मैं पुल वाले मैदान में रोजाना रात को आता हूँ और इस घोड़ी की खूब पिटाई करता हूँ। हारून रशीद ने जब ये सुना तो कहा, ये नौजवान, अब मेरी समझ में पूरी बात आ गई। वाकई इस औरत को ठीक सजा मिल रही है, लेकिन तुम अपनी नई बीवी से कहकर ऐसी तरकीब करो कि तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा सके और तुम्हारा भी इस रोज रोज की मारपीट से पीछा छूट जाए। उसके बाद हारून रशीद ने उस आदमी की तरफ देखा जो दोनों हाथों से खैरात दे रहा था और उससे पूछा, कल रात मैंने तुमको पुल के पास बड़ी फियाजी से खैरात करते देखा और मुझे ये ख्याल आया कि तुम्हारी जिंदगी में जरूर कोई ऐसा वाक़या पेश आया है जिसने तुमको इतना मुकीर कर दिया है। तुम भी अपनी जिंदगी का हाल सुनाओ। किस्सा ख्वाजा हसन रसन फिरोश का। उस आदमी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मेरी कहानी भी बहुत अजीबो करीब है। मेरा नाम ख्वाजा हसन है। मेरा बाप दादा रस्सी बटने और बेचने का काम करते हैं। मैं भी यही काम करता हूँ, इसलिए लोग मुझे ख्वाजा हसन रसन फिरोश कहते हैं। किसी न किसी तरह मैं अपने बच्चों का पेट पालता और बड़ी तंगी से गुजर बसर करता था। आप जानते हैं कि रस्सी का काम ऐसा काम नहीं है कि इसमें लोग ज़्यादा रुपया कमा सके, लेकिन मैं हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता था। एक रोज़ मैं अपनी दुकान में बैठा हुआ रस्सियों को लपेट रहा था कि इतने में शहर के दो दौलतमंद मेरी दुकान में दाखिल हुए। ये दोनों एक दूसरे से बहस कर रहे थे। इनमें से एक, जिसका नाम साद था, अपने दोस्त सादी से कह रहा था, मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी बात को काटना नहीं चाहता, लेकिन अब भी ये समझता हूँ कि इंसान जो कुछ हासिल करता है वो तदबीर से हासिल करता है। लेकिन अगर किसी इंसान के पास रुपया पैसा ना हो तो वो तदबीर भी क्या करे। ऐसे मौके पर तदबीर भी कोई काम नहीं करती, इसलिए बगैर रुपए के कैसे काम करे। सादी ने कहा, मेरे प्यारे दोस्त, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। इसकी वजह यह है कि मैं तो तकदीर का कायल हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि हर आदमी अपनी तकदीर के सामने बेबस होता है। तकदीर किसी को बादशाह से फकीर और फकीर को बादशाह बना सकती है। वैसे आदमी लाख तदबीर करे लेकिन कुछ काम नहीं हो सकता। किसी को तुम कितने ही रुपया क्यों न दे दो, लेकिन अगर उसकी तकदीर में नहीं है तो उस रुपए से कुछ नहीं कर सकता। ये रुपया भी बेकार जाएगा। साथ ने कहा, भाई, ऐसा मालूम होता है कि हम दोनों एक दूसरे को कभी कायल नहीं कर सकते, इसलिए क्यों ना हम अपनी बात का तजर्बा करें और उसके लिए किसी गरीब आदमी को ढूंढें, कुछ रुपया उसे दे दें और फिर उसे देखें कि वो अपनी तकदीर अपने हाथों से बनाता है या नहीं। सादी ने कहा, अच्छा भाई, यही सही, लेकिन उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। हसन रसन फिरोशी पर इसका तजर्बा किया जाए। यह आदमी गरीब भी है और मेहनती भी। साद ने भी ये राय पसंद की और उसने मुझसे कहा, ए हसन, मैं जानता हूं कि तुम्हारे बाल बच्चे हैं और तुम बड़ी मुश्किल से जिंदगी गुजार रहे हो, लेकिन इसके लिए तुम मजबूर भी हो, इसलिए कि इस काम में तुमको जो कुछ मिलता है तुम्हारा खर्च उससे ज्यादा है। चुनाचे तुम्हारा कारोबार बढ़ नहीं पाता। मैं तुमको सोने के 200 दीनार देता हूँ, तुम उसे ले लो और अपने कारोबार को खूब बढ़ाओ। मुझे यकीन है कि तुम्हारा कारोबार खूब तरक्की करेगा। ये बात सुनकर मैं खुश हो गया। मैंने उन दोनों हजरात को दुआ दी और ये रकम कबूल कर ली और उनसे कहा, मैं अब इतनी बड़ी रकम से अपने कारोबार को इतना बढ़ाऊंगा कि मुझे यकीन है कि एक दिन मेरा कारोबार बहुत तरक्की करेगा। साथ को मेरी बात से इत्मीनान हो गया और उसने सोने के 200 दीनार की थैली मेरे हवाले कर दी। मैंने उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। फिर वो दोनों बातें करते हुए मेरी दुकान से चले गए। मैंने सोचा कि मैं अब इतनी बड़ी रकम रखूं तो कहाँ रखूं, मेरा घर तो इतना बड़ा नहीं है। आखिर मेरी समझ में एक बात आ गई। मैंने उसमें से 10 दीनार तो खर्च के लिए निकाले और 190 दीनार अपनी पगड़ी में खूब अच्छी तरह रखे और ये सोचा कि इससे बेहतर जगह और क्या होगी। अब मैंने रस्सी बटने के लिए कुछ सन खरीदी। फिर मैं सोचने लगा कि बरसों गुजर गए, मैंने और मेरे बाल बच्चों ने गोश्त की शक्ल नहीं देखी, क्यों ना आज भेड़ का गोश्त खाया जाए। चुनाचे मैंने बाजार से एक भेड़ की टांग खरीदी और उसे लेकर चला। अब उसको लेकर चला ही था कि इतने में एक चील ने जोर से झपटा मारा, भेड़ की टांग मुंह में दबाई और मेरी पगड़ी पंजों से पकड़कर उड़ गई। मैं देखता रह गया। रास्ता चलने वालों ने बहुत शोर मचाया, लेकिन जरा सी देर में चील ये जा वो जा नजरों से ओझल हो गई। मैं रोता पीटता रह गया। मैंने घर जाकर अपनी बीवी को सारा हाल सुनाया। उसको भी सुनकर अफसोस हुआ, लेकिन वो बेचारी भी क्या करती। आखिर मैं रो पीट कर बैठ गया और मेरी जिंदगी जूं की तूं रही। मैंने ये किस्सा पड़ोसियों को भी सुनाया, लेकिन उनको यकीन नहीं आया और बच्चे मुझे देखकर चिल्लाते, वो देखो हसन रसन फिरोश को, इसका पगड़ी के साथ तमाक भी चील ले गई। अगर किसी न किसी तरह 10 महीने गुजर गए। एक दिन साद और सादी दुकान में दाखिल हुए।
साद ने आते ही कहा, आओ जरा अपने दोस्त हसन का हाल मालूम करें कि उसका कारोबार कैसा चल रहा है। यकीनन अब बहुत जोरों पर होगा। सादी ने कहा, अरे भाई, तुम तो गल्ला पकने से पहले काटने की बात कर रहे हो। मुझे तो हसन के हाल में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। वो देखो, उसका तो वही हाल है जो पहले था। तब साद ने मुझे गौर से देखा और बोला, अरे भाई हसन, क्या मामला है? तुम तो वाकई उसी हाल में हो। मैं तो समझा कि तुमने बहुत तरक्की की होगी। आखिर क्या किस्सा है? मैंने कहा, मेरे आका, मैं क्या अर्ज करूं कि तकदीर ने मेरे साथ क्या खेल खेला। यह कहकर मैंने सारा किस्सा सुनाया। मैं जब यह किस्सा बयान कर रहा था तो मैंने देखा कि साद ही चुपचाप मुस्कुरा रहा था। साद ने कहा, भाई, बात यह है कि मुझे तुम्हारी बात का यकीन नहीं आता। भला कहीं चील भी इस तरह रुपए लेकर उड़ सकती है? मुझे तो मालूम होता है कि तुमने ये सब दिनार ऐशो इशरत में खत्म कर दिए। खैर, मैं अपनी बात से मायूस नहीं हूं। मैं तुमको फिर 200 दिनार देकर एक मौका और देता हूं, क्योंकि एक ही बार का तजर्बा नहीं होता। ये कहकर उसने फिर मुझे 200 सोने के दिनार दे दिए और बोला, देखो, अब इसे पगड़ी में मत रखना। मैंने उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और वो दोनों बातें करते हुए दुकान से बाहर चले गए। इस बार मैंने सोचा कि मैं किसी को ये रात न बताऊंगा। वैसे ही लोग क्या कम मेरा मजाक उड़ाते हैं। जैसे ही शाम को मेरे बीवी बच्चे बाहर गए, मैंने ये थैली एक मटकी में छुपा दी जिसमें भूस भरा हुआ था। मैंने उसमें से सिर्फ 10 दिनार अपना सन खरीदने के लिए निकाले और बाजार चला गया। जब मैं बाजार गया तो मेरे पीछे एक आदमी सर धोने की खल बेचने के लिए वहां आया। मेरी बीवी के पास रुपए पैसे तो थे नहीं। उसने उसी भूस की मटकी को देकर उस आदमी से खल बदल ली। उस बेचारी को क्या मालूम था कि इसमें मैंने 190 सोने के दीनार रखे हैं। जब मैं घर आया तो देखा कि वो मटकी गायब थी। मैंने बीवी से पूछा, वो मटकी कहाँ है? मेरी बीवी ने खुश होकर यह खबर सुनाई कि उसने खल के बदले में उस भूसी की मटकी को बदल दिया। यह सुनना था कि मैंने अपना सर पीट लिया और कहा, तुमने मेरी और अपने उन बच्चों की तकदीर को मिट्टी के मोल दे दिया। हाय, ये मेरी आखिरी उम्मीद थी जो खत्म हुई। फिर मैंने उसको सारा किस्सा सुनाया। ये सुनकर तो उसकी हालत भी खराब हो गई। हाय, ये मैंने क्या किया? अब मैं उस आदमी को कहाँ ढूंढूं? मैंने तो उसे देखा भी नहीं। लेकिन अब क्या हो सकता था? जो कुछ होना था हो चुका था। मेरी बीवी को इस बात पर भी गुस्सा आता था कि मैंने उस पर भरोसा क्यों नहीं किया और उसको ये बात पहले क्यों ना बताई, वरना ऐसा होता ही क्यों। बात भी सच थी। वो बहुत चीखी चिल्लाई। फिर मैंने उसे खामोश किया और कहा, हमारे पड़ोसी सुन लेंगे तो और हंसेंगे। वैसे ही वो हमारा क्या कम मजाक उड़ाते हैं। खैर, किसी न किसी तरह से वो वक्त गुजर गया और हम अपनी जिंदगी इसी तरह गुजारते रहे और कुछ दिनों में इस बात को बिल्कुल भूल गए। अलबत्ता मुझे अपने उन हमदर्दों का ख्याल आकर अफसोस होता कि वो अब आएंगे तो मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगा। इस बार वो बहुत दिनों के बाद उधर आए। अभी वो दुकान के बाहर ही थे कि मुझे उनकी आवाज सुनाई दी, जैसे वो मेरे ही बारे में बात कर रहे हो। अब देखो हमारे हसन का क्या हाल है। मेरा तो ख्याल है कि उसका कारोबार कहीं से कहीं पहुंच गया होगा। मेरा ख्याल तो ये है कि वो अभी वहीं का वही होगा। कई रुपए से भी आदमी तरक्की करता है। ये बातें करते हुए वो दुकान के अंदर दाखिल हुए। मैं अपनी रस्सी पटने के काम में उसी तरह मसरूफ रहा जैसे मैंने उन्हें देखा ही ना हो। इतने में उन्होंने मुझे बड़े जोर से सलाम किया। मैंने सर उठाकर जवाब दिया और अपनी सारी बब्ता उनको सुना दी। साद ने कहा, भाई, मैं अब क्या कर सकता हूँ? पहली बात तो यह है कि समझ में नहीं आता कि चील कैसे इतना रुपया ले गई और अब ये कुआंचे वाला उसको लूट कर ले गया। लेकिन मुझ में और तजर्बा करने की हिम्मत नहीं है। अलबत्ता ये यकीन है कि ये सब तकदीर का खेल है। आदमी तकदीर के सामने बेबस है। सादी ने एक शीशे का सिक्का उठाया और हसन को देते हुए कहा कि मेरा दोस्त बहुत दौलतमंद थे तो उसने 400 दिनार दे डाले। मैं तो यही दे सकता हूँ जिसे मच्छरे अपनी जाल में इस्तेमाल करते हैं। शायद ये तुमको कभी बहुत दौलतमंद बना दे। मैंने उसे लेकर अपनी जेब में रख लिया। साद ने बड़े जोर से केका लगाया। मैंने इन दोनों को बहुत अदब से सलाम किया। फिर दोनों दोस्त चले गए। रात को जब मैं लेटा तो मैंने वो सिक्का उठाकर एक तरफ डाल दिया और सो गया। अभी आधी रात हुई थी कि हमारे पड़ोसी मछेरे की बीवी ने हमें जगा दिया। दरअसल मछेरा शिकार पर जा रहा था और जाल का एक सिक्का जो उसमें बंधा रहता था कहीं गिर गया। उसने इधर उधर बहुत तलाश किया लेकिन नहीं मिला। बाजार में दुकानें बंद हो गई थी। मजबूरन उसने अपनी बीवी से कहा कि पड़ोसन को जगाकर उससे पूछे, शायद उसके पास कोई शीशे का सिक्का मिल जाए तो मेरा काम बन जाए, वरना फिर आज मछली पकड़ने नहीं जा सकेंगे। चुनाचे उसकी बीवी हमारे यहाँ आई और कहने लगी, मुझे बहुत अफसोस है कि मैं इतनी रात गए जगा रही हूँ, लेकिन बात यह है कि मेरे शोहर को जाल के लिए एक शीशे के सिक्के की जरूरत है ताकि वो शिकार पर जाए। अगर तुम्हारे पास कोई टुकड़ा हो तो दे दो। मुझे एकदम से
अपना शीशे का सिक्का याद आ गया जो सादी ने मुझे दिया था। मैंने सोचा कि चलो पड़ोसी की मदद के लिए ये बेहतरीन मौका है। मैंने वो शीशे का सिक्का उठाकर उसे दे दिया। ये सिक्का पाकर वो बहुत खुश हुई और बोली, तुम लोगों ने इस वक्त मेरी बड़ी मदद की है। अब जो पहली मछली इस जाल में आएगी वो मैं तुम्हें लाकर दूंगी। ये कहकर वो चली गई। मछली ने जो जाल डाला तो सबसे पहले एक बड़ी सी मछली जाल में आई और उसके बाद उसने छोटी छोटी बहुत सी मछलियां पकड़ी। उसने शाम को वो छोटी छोटी मछलियां तो बाजार में बेच डाली, लेकिन वो बड़ी मछली लाकर मुझे दे दी और बोला, भाई हसन, ये मामूली तोहफा कबूल कर लो, तुमने मेरी बड़ी मदद की। मैंने कहा, भाई, एक जरा से शीशे के सिक्के के बदले तुम इतनी बड़ी मछली ले आए, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। मैंने अपनी बीवी से कहा, साथ ही ने सच कहा था, ये देखो, एक जरा से शीशे के टुकड़े से इतनी बड़ी मछली मिली जो बड़े बड़े लोगों को नहीं मिलती। ये शीशे का सिक्का हमारे लिए बड़ा मुबारक साबित हुआ। हसन की बीवी ने कहा, यह तो सही है कि ऐसी मछली मुश्किल से मिलती है, मगर उसको पकाने के लिए हमारे पास घी कहाँ से आएगा। हसन ने कहा, तुम इसकी फिक्र मत करो, तुम उसके टुकड़े करके इसको भून कर खिला दो। हसन की बीवी ने जो मछली का पेट काटा तो उसमें एक चमकती हुई चीज निकली। अब जो उसे धोया तो वो और ज्यादा चमकने लगा। ये अंडे के बराबर था। हमने उसे उठाकर बच्चों को दे दिया ताकि बच्चे अपनी माँ को ज्यादा परेशान न करें। खाना खाने के बाद अब जो हम कमरे में गए तो मेरे बच्चे वहां लड़ रहे थे। जब बच्चे ज्यादा शोर करने लगे, मैंने उन बच्चों से वो पत्थर लेकर एक तरफ रख दिया। हालांकि उस वक्त किसी ने चिराग नहीं जलाया था, लेकिन फिर भी हमारे कमरे में बहुत रोशनी हो रही थी उस पत्थर की वजह से। वो पत्थर बहुत ज्यादा चमक रहा था। अब तो मुझे और ज्यादा खुशी हुई। मैंने बीवी से कहा, देखो, साथी के सिक्के से फायदा हुआ कि अब हमें तेल का खर्च बच गया। उसके बाद हम लोग खूब मजे में मछली खाकर सोए। सुबह को उठे तो जरा सी देर में इस अजीबोगरीब चिराग का हाल सारे मोहल्ले को मालूम हो गया। हमारे पड़ोस में से एक यहूदी जोहरी रहता था। उसकी बीवी भी देखने आई और पूछने लगी, रात को बच्चे क्यों लड़ रहे थे। मेरी बीवी ने उससे कहा कि हमारे पास एक पत्थर है जो चमकता है, उस पर लड़ रहे थे, जिस पर बाप ने झिड़क कर उनसे वो पत्थर ले लिया। जरा मैं भी तो वो अंडा देखूं जिसका सारे मोहल्ले में चर्चा है और जिस पर बच्चे लड़ रहे थे। हसन की बीवी ने उसे दिखाया तो वो खुश होकर बोली, पड़ोसन भी, ऐसा ही एक अंडा हमारे पास है, अगर तुम इसको हमारे हाथ बेच दो तो मैं उसके बदले तुमको 10 दीनार दूंगी। बच्चों ने जो ये सुना तो उन्होंने कहा कि हम तो इसे किसी कीमत पर ना बेचेंगे। जब मैं वापस आया तो मेरी बीवी ने बताया कि यहूदी की बीवी 10 दीनार में उसे खरीदना चाहती थी। मैं समझ गया कि ये कोई कीमती चीज है, वरना भला यहूदी और उसे खरीदे। मैंने बीवी से कहा, देखो, वो यहूदन फिर आएगी, लेकिन तुम मुझसे पूछे बगैर इसे मत बेचना। मेरा अंदाजा सही था। शाम को वो यहूदन आई और बोली, खुदा ने तुमको ये चीज दी है और मेरे पास इसका जोड़ा है। मेरे शोहर ने कहा है कि 20 दीनार देकर ले लो, अगर तुम दे सको तो अच्छा है। दरअसल बात यह है कि हमारा जोड़ा पूरा हो जाएगा, वरना इसके दाम इतने कहाँ हैं। मेरी बीवी ने कहा, मैं अपने शोहर की मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं करती, इसलिए मैं क्या कहूँ। जरा सी देर बाद में घर आ गया। यहूदन ने मेरे सामने भी वही बात कही। मैंने जुबान से तो कुछ नहीं कहा, अलबत्ता इशारे से मना कर दिया। मेरी बात सुनकर यहूदन को बहुत तकलीफ हुई और वो मेरी खुशामद करने लगी। मैंने कहा, मैं हरगिज इतना सस्ता नहीं बेच सकता। यहूदन ने कहा, अच्छी बात है, अगर तुम 20 दीनार में नहीं देते तो 50 दीनार में तो दे दो। मैंने साफ मना कर दिया। उस पर वो बड़ी तेजी से चली गई, लेकिन फिर पलट कर आई और बोली, अच्छी बात है, 100 दीनार में तो दे दोगे। वैसे मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकती, क्योंकि मैंने अपने शोहर से नहीं पूछा, ये तो मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ। मैंने कहा, अभी पड़ोसन, तुम नहीं जानती ये कितनी कीमती चीज है। अगर तुम इसके 1 लाख दीनार देने के लिए तैयार हो तो ले सकती हो, मैं इससे 1 पैसा कम पर ना बेचूंगा। तुम चाहो तो दूसरे जोहरियों से इसके दाम मालूम कर सकती हो। जब उसने मेरी बात सुनी तो पहले घबरा गई, फिर बोली, दरअसल ये खरीदो फरोख्त का काम मेरा शोहर करता है। अब मैं कहूंगी कि वो खुद इसको देख ले, अगर वो पसंद करेगा तो खुद खरीद लेगा। अलबत्ता तुमसे एक बात ये कहना है कि जब तक वो देख न ले तुम इसको हरगिज न बेचना। मैंने कहा, अभी पड़ोसन, ये मैं वादा करता हूँ। वो औरत चली गई। अब तो मुझे यकीन हो गया कि वाकई ये कोई कीमती चीज है और समंदर में ऐसे बेशबहा खजाने होते हैं। अभी मैं ये सोच रहा था कि यहूदी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने उसे अंदर बुला लिया। पहले तो वो इधर उधर की बातें करने लगा, उसके बाद बोला, मेरी बीवी वो अंडा खरीदना चाहती है और जिद कर रही है कि उसे जरूर खरीद दूं। तुम जानते हो कि औरत की जिद तो पूरी करनी ही पड़ती है, इसलिए मजबूरन मैं तुमसे कहने आया हूं कि इसे मेरे हाथ भेज दो। मैंने कहा, भाई, मैं इसे बेचना नहीं चाहता। दरअसल गलती से मेरी जुबान से इसकी कीमत निकल गई। तुम्हारी बीवी ने बहुत जोर दिया,
ورنہ یہ تو 10 لاکھ دینار میں بھی مہنگا نہیں۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم اس کو خریدنا چاہتے ہو تو میں اس کے 1 لاکھ دینار لوں گا، اور اس وقت کے بعد ہرگز تمہارے ہاتھ نہیں فروخت کروں گا۔ یہودی سمجھ گیا کہ میں واقعی اس سے کم میں نہ بیچوں گا، تو مجھ سے بولا، اچھا لاؤ، تمہارے ضد ہے تو یہی صحیح۔ باہر میرے ملازم 1 لاکھ سونے کے دینار لیے کھڑے ہیں۔ میں نے جو دروازہ کھولا تو واقعی وہ لوگ وہاں موجود تھے۔ یہودی نے فوراً وہ رقم میرے سامنے گن دی اور میں نے انڈا اس کے حوالے کیا۔ وہ اسے لے کر چلا گیا۔ اب تو میں لاکھ پتی ہو چکا تھا، اور اتنی دولت دیکھ کر میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جتنی رسی بنانے والے تھے ان سب کا ایک جلسہ کیا اور کہا، میرے بھائیوں، اللہ نے مجھے بہت دولت دی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم سب کو میری ذات سے فائدہ پہنچے، اس لیے تم لوگ میری طرف سے کام کرو۔ میں ہر روز تمہاری مزدوری دوں گا اور تم کو اپنی روزی کی فکر نہ رہے گی اور مزے کی زندگی گزارو گے۔ میری بات سن کر یہ سب لوگ بہت خوش ہوئے اور اب یہ سب میرا کام کرنے لگے۔ چند روز کے اندر یہ کام بہت بڑھ گیا۔ رسی بٹنے والے بھی خوشحال ہو گئے اور میرا کاروبار بھی چل نکلا، اور میری دولت دن دگنی رات چگنی بڑھنے لگی۔ اس کے بعد میں نے بڑا شاندار مکان بنایا اور ایک شاندار دکان کھولی۔ ایک دن کیا ہوا کہ سعد اور سعدی مجھ سے ملنے آئے۔ وہ سیدھے میری پرانی دکان میں پہنچے جو ان دنوں بند تھی۔ وہ سمجھے کہ میں مر گیا ہوں، لیکن پڑوس کے دکانداروں نے بتایا کہ میں اب بغداد کے دولت مند دکانداروں میں ہوں۔ یہ سن کر وہ حیرت میں پڑ گئے اور سیدھے میرے نئے مکان میں آئے۔ ملازمہ نے مجھے بتایا کہ سعد اور سعدی نامی 2 آدمی مجھ سے ملنے آئے ہیں۔ میں ننگے پاؤں دوڑا گیا اور انہیں اپنے ساتھ لے آیا اور انہیں اپنی ساری داستان سنائی۔ سعدی نے کہا، دیکھا میرے دوست، یہ ہے تقدیر کے کھیل۔ ابھی یہ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں میرے لڑکے کھیلتے ہوئے آئے اور بولے، بابا دیکھو کتنا اچھا چیل کا گھونسلہ ہے۔ جب چیل اڑ گئی تو ہم اٹھا لائے۔ یہ کپڑے کا گھونسلہ ہے اور اس میں چیل کے ننھے منھے بچے ہیں۔ اب جو میں نے غور سے دیکھا تو یہ میری ہی پگڑی تھی۔ میں نے پگڑی سے چیل کے بچوں کو اٹھا کر ایک طرف رکھا اور پگڑی جو کھولی تو اس میں 190 دینار تھے۔ اب تو سعد کو یقین آ گیا کہ واقعی میں سچا تھا اور میری پگڑی کو چیل اڑا کر لے گئی تھی۔ ابھی ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرا ایک غلام مٹکا لیے آ رہا ہے۔ وہ غلام کہنے لگا کہ یہ بھوسی ہے جو میں گھوڑے کے لیے بازار سے لایا ہوں۔ اب جو میں نے اس میں ہاتھ ڈال کر دیکھا تو اس میں 190 دینار تھے جو میں نے اپنی بیوی سے چھپا کر رکھے تھے۔ یہ دیکھ کر سعد اور سعدی بہت خوش ہوئے اور انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ میں نے ان سے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ سچ مچ میری پگڑی چیل لے گئی تھی، اور یہ کہ میری بیوی نے غلطی سے کھل کے بدلے میں بھوسی کا مٹکا دے دیا تھا۔ اس کے بعد میں، سعد اور سعدی تینوں ایک ساتھ دوستوں کی طرح رہنے لگے۔ میرے کاروبار نے بہت ترقی کی۔ اس روز سے میرا یہ دستور ہے کہ میں پل پر جا کر دونوں ہاتھوں سے خیرات کرتا ہوں، اور اس کے باوجود میری دولت بڑھتی جاتی ہے۔ خلیفہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے اپنے وزیر سے اشارہ کیا۔ وزیر نے ایک صندوقچہ لا کر رکھا، اس میں وہی انڈا تھا۔ خلیفہ نے کہا کہ جس دن تم نے بیچا اسی دن میں نے اسے خرید لیا۔ اب بادشاہ نے استاد سے کہا کہ سامنے آؤ اور اپنی کہانی سناؤ۔ قصہ ایک استاد کا۔ امیر المومنین، میرا قصہ بھی کچھ کم انوکھا نہیں ہے۔ میں نے اپنی زندگی ایک استاد کی حیثیت سے شروع کی۔ میرے مدرسے میں 24 بچے پڑھتے تھے۔ میں ان بچوں پر بڑی سختی کرتا تھا اور انہیں ذرا بھی کھیلنے کودنے کا موقع نہ دیتا تھا۔ سورج ڈوبنے سے پہلے انہیں چھٹی نہ دیتا۔ وہ دن بھر پڑھتے اور پڑھنے کے علاوہ ان کا کوئی دوسرا کام نہ تھا، یہاں تک کہ کبھی ایک دوسرے سے بات بھی نہ کر سکتے تھے۔ ان پر اتنی سختی کا یہ نتیجہ ہوا کہ میں آج اس حال میں پہنچا ہوں۔ ایک دن میں پڑھا رہا تھا کہ اتنے میں سب بچے ایک ساتھ کھڑے ہو گئے اور ایک آواز میں بولے، مولوی صاحب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ کا رنگ بالکل پیلا پڑ گیا ہے۔ ان کے چہرے سے پریشانی ظاہر ہو رہی تھی، حالانکہ میری طبیعت بالکل ٹھیک تھی، لیکن ان کو دیکھ کر اور ان کی بات سن کر واقعی ایسا لگا کہ جیسے میں سچ مچ بیمار ہوں۔ لیکن میں نے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تم اپنا کام کرو۔ ذرا سی دیر کے بعد میرے سب سے بڑے شاگرد نے کھڑے ہو کر کہا، خدا کرے کہ آپ جلد اچھے ہو جائیں۔ اس وقت بہتر ہے کہ آپ آرام کریں، میں آپ کی جگہ لڑکوں کو پڑھا دوں گا۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ ضرور میری طبیعت خراب ہے۔ میں نے اپنے اس شاگرد کو پڑھانے کے لیے کہہ دیا اور خود گھر میں چلا گیا۔ مجھے بہت کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے بیوی سے کہا، میری طبیعت خراب ہے، جلدی سے بستر لگا دو۔ میں بڑے زور زور سے کرا رہا تھا۔ اتنے میں دروازے پر میرے اس بڑے شاگرد نے دستک دی اور میری بیوی کو 24 درہم دیے اور کہا، مولوی صاحب کی صحت کے لیے ہم سب دعا کر رہے ہیں۔ یہ درہم لڑکوں نے مولوی صاحب کے علاج کے لیے اکٹھا کیے ہیں
ताकि किसी किस्म की परेशानी न हो। मेरे ऊपर लड़कों की उस मोहब्बत का बहुत असर हुआ और मैंने उन्हें उस रोज की छुट्टी दे दी। वो लड़के खुशी खुशी घर चले गए। मैं तमाम दिन अपनी बीमारी के बारे में सोचता रहा। अगले दिन जब वो लड़का मुझे देखने आया तो मैंने देखा कि मुझे देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये आपका क्या हाल है? तमाम लड़के आपकी वजह से परेशान हैं। आप आराम कीजिए, हमारी फिक्र न कीजिए। मेरे दिल पर इसका बहुत असर हुआ। मैंने उससे कहा, आज तुम ही लड़कों को पढ़ा दो। वो लड़का अपने साथियों को खबर सुनाने चला गया। उसके बाद वो हर रोज इसी तरह आता और मुझे देखकर और परेशान होता और मैं उससे लड़कों को पढ़ाने के लिए कहता। इसी तरह एक हफ्ता गुजर गया। एक बार फिर वो 24 दरहम लेकर आया और उसने बहुत परेशान होकर कहा, आपके शागिर्दों ने इलाज के लिए ये रुपया दिया है और कहा है कि आप उनकी तरफ से परेशान ना हो। इस बात का मेरे ऊपर और ज्यादा असर हुआ। मैंने सोचा कि ये बीमारी मेरे लिए नेमत हो गई है कि इतना रुपया घर बैठे मिल रहा है। लेकिन चंद रोज में मुझे अंदाजा हो गया कि मैं बीमार नहीं हूँ, ये लड़के मुझे धोखा दे रहे हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर किसी तरह मुझे घर बैठे रुपया मिलता रहे तो मेरा क्या नुकसान है। चुनाचे मैं भी उनसे यही कहता रहा कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, कोई गिज़ा हजम नहीं होती। हालांकि मैंने उस जमाने में जो गिज़ा खाई वो मुझे उससे पहले कभी नहीं मिली थी। एक रोज वो लड़का जब घर में दाखिल हुआ तो मैं अंडा खाने ही वाला था। मैंने उसे देखते ही सारा अंडा गरम गरम मुंह में रख लिया। उस लड़के ने मुझे देखा तो मेरा गला फूला हुआ था। कहने लगा कि आपका मुंह पक गया है, उसमें मवाद है, उस मवाद को निकलवा देना चाहिए। वो आगे बढ़ा ही था कि मैं गुस्सल खाने की तरफ भागा और मैंने अंदर जाकर उसे उगल दिया। लेकिन मेरा सारा मुंह बुरी तरह जल चुका था। चुनाचे उसमें सचमुच मवाद पड़ गया और मुझे जरा से ऑपरेशन कराना पड़ा, जिससे मेरी शक्ल इतनी खराब हो गई कि आप खुद देख लीजिए। जब मेरा जख्म ठीक हो गया तो फिर मैंने लड़कों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अब तो मैं उन पर और ज्यादा सख्ती करता और जरा सी बात पर सख्त से सख्त सजा देता। वो मेरे इशारों पर अमल करने लगे। जहां मैं खांसता वो हाथ बांध कर खड़े हो जाते और कहते, अल्लाह रहम करे, और मैं कहता, जाओ तुमको माफ किया। इसी तरह बहुत दिनों ये सिलसिला जारी रहा। एक रोज मैं लड़कों को पिकनिक के लिए ले गया। कुछ दूर जाने के बाद प्यास लगी। वहां कुआं नजर आया। मैंने सोचा कि मैं इस कुएं के नीचे जाकर खुद ही पानी ले आऊं। वहां कोई रस्सी तो थी नहीं। मैंने कई पगड़ियों को एक साथ बांधा और अपनी कमर में गांठ लगा ली और लड़कों से कहा कि मुझे कुएं में उतार दो। अभी वो मुझे नीचे उतार ही रहे थे कि अचानक मुझे खांसी आ गई। खांसी का आना था कि उनके हाथ से पगड़ी छूट गई। ये धड़ाम से पानी में गिरा और वो हाथ बांध कर आदत के मुताबिक बोले, अल्लाह रहम करे। मैं उसका जवाब क्या देता? मैं डूबा तो नहीं, अलबत्ता मेरे पाँव की 2 हड्डियां और एक कंधे की हड्डी टूट गई। मैं बड़े जोर से चीख रहा था, लेकिन लड़के मारे डर के वहां से भाग गए। फिर मुझे कुछ राहगीरों ने निकाला और एक गधे पर बिठाकर घर पहुंचाया। उस रोज से आज तक मेरी हालत खराब है। मैंने पढ़ाने का काम छोड़ दिया है और सड़क पर भीख मांगता हूँ ताकि अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सकूं। यह है मेरी कहानी। अब खलीफा ने उस अंधे फकीर से कहा कि तुम अपनी कहानी सुनाओ। कि खैरात लेने के बाद थप्पड़ मारने के लिए कहते हो। किस्सा बाबा अब्दुल्लाह का। अंधे फकीर ने अपनी कहानी इस तरह शुरू की। अमीरुल मोमिनीन, मुझे बाबा अब्दुल्लाह कहते हैं। मेरे माँ बाप मेरे लिए बहुत दौलत छोड़कर मरे। मैंने बड़ी बेदर्दी से खर्च करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि बहुत थोड़े से दरहम बचे। अब मुझे होश आया। मैंने सोचा कि मुझे भी कोई तरकीब करना चाहिए। चुनाचे मैंने 80 ऊँट खरीदे और उन्हें किराए पर चलाया करता। इसी तरह मुझे फायदा हुआ। अब मैं सोचने लगा कि किसी तरह इतना रुपया कमाऊं, इतना रुपया कि एक दिन दुनिया का सबसे दौलतमंद आदमी बन जाऊं। चुनाचे दिन भर में इसी धुन में मुब्तला रहता। एक दिन मैं ऊँटों पर माल लाद कर बसरे ले गया। वहां से जब वापस आ रहा था तो मैंने एक जगह रास्ते में ऊँटों को चरने के लिए छोड़ दिया। अभी मैं अपना खाना खाने के लिए बैठा ही था कि एक दरवेश आया और वो आकर वहीं बैठ गया। हम लोगों ने एक दूसरे का हाल पूछा। उसने अपना खाना निकाला और फिर हम दोनों ने मिलकर खाना खाया। मैंने उसे अपने कारोबार के बारे में बताया और ये भी कहा कि मेरी यह आरजू है कि एक दिन मैं दुनिया का सबसे दौलतमंद आदमी बन जाऊं। मेरी ये बात सुनकर वो दरवेश हंसा और बोला, भला ये भी कोई बात है? इसमें तो मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर तुम्हारे पास इतनी दौलत हो जाएगी कि सारी दुनिया के लोग तुम पर अश्क करेंगे। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक ऐसा खजाना है जिसका कोई हिसाब नहीं। तुम अपने तमाम ऊँटों पर भर लो, तब भी वो खत्म ना होगा। मैंने कहा, बाबा मुझे जल्दी से उस खजाने का पता बताओ कि वो यहाँ से कितनी दूर है। उसने कहा, अपने ऊँटों को लेकर मेरे पीछे पीछे चलो। मैं उस दरवेश के पीछे हो लिया और दिल में सोचने लगा
کہ آج میرے خواب کے پورے ہونے کا دن آ گیا۔ ہم لوگ چلتے چلتے ایک وادی میں پہنچے۔ درویش نے کہا کہ تم اپنے اونٹوں کو زمین پر بٹھا دو تاکہ ہم لوگوں کو اس خزانے کے لادنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ یہ کہہ کر درویش ذرا سی دور چلا گیا۔ میں نے اونٹوں کو زمین پر بٹھایا۔ اس نے آگ سلگائی، اس میں لوبان جیسی کوئی چیز ڈالی اور پھر کچھ پڑھ کر پھونک مارا۔ ذرا سی دیر میں دھواں پھیل گیا، اور جب دھواں صاف ہوا تو مجھے ایسا لگا کہ دو چٹانیں الگ ہو گئیں۔ وہاں ہر طرف سونے چاندی اور جواہرات کے ڈھیر نظر آئے۔ میں نے جلدی جلدی سونے کے ٹکڑے اونٹوں پر لادنا شروع کر دیے، لیکن درویش نے کہا، ارے بھائی کیا بے وقوفی کرتے ہو؟ اگر سونا بھرو گے تو اتنا وزن یہ اونٹ کیسے لے جا سکیں گے؟ البتہ تم ہیرے جواہرات بھرو تو بات بھی ہے، وزن بھی کم ہوگا اور ان کی قیمت بھی زیادہ ملے گی۔ میں نے اس کی بات مان لی اور ہیرے جواہرات اپنے اونٹوں پر لادے۔ اس درمیان میں درویش نے ایک چھوٹے سے برتن میں کچھ جواہرات بھرے اور اپنے لبادے میں اس کو چھپا لیا۔ اس کے بعد اس نے پھر آگ سلگائی اور اس میں کوئی چیز ڈال کر اس کو پھونکا۔ پہلے تو دھواں نکلا، اور اس کے بعد جب دھواں صاف ہوا تو وہ دونوں چٹانیں ایک دوسرے سے مل گئی۔ درویش نے کہا، بابا عبداللہ آؤ اب اس جگہ چلیں جہاں سے ہم لوگ یہاں آئے تھے، پھر ہم اس دولت کو برابر تقسیم کر لیں۔ اب ہم ادھر چلے۔ جب اس جگہ پہنچے جہاں سے روانہ ہوئے تھے تو مجھے اس کا افسوس ہوا کہ یہ درویش مفت میں یہ دولت اور 40 اونٹ لینا چاہتا ہے، حالانکہ یہ اونٹ بھی میرے ہیں اور ان پر لادنے کا کام بھی میں نے کیا ہے۔ درویش نے تو پتہ ہی بتایا ہے، پھر یہ کہ اگر اس کے بس میں لے جانا ہوتا تو یہ مجھے ہی کیوں بتاتا؟ یقیناً یہ اکیلا بے بس تھا، اس لیے اس دولت کا اصل مالک تو میں ہی ہوں۔ چنانچہ جیسے ہی تقسیم کا وقت آیا، میں نے کہا، بابا آپ تو درویش ہیں، آپ کو دنیا کے مال و دولت سے کیا واسطہ؟ البتہ اگر محض راستہ بتانے کی قیمت لینا چاہتے ہیں تو یہ اور بات ہے۔ میں نے سوچا کہ درویش میری بات سن کر بہت ناراض ہوگا، لیکن اس پر تو کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے کہا، بھائی تم ٹھیک کہتے ہو کہ مجھے دنیا کے مال و دولت سے کیا کام، لیکن میں تو اسے غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں، اور جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ میں راستہ بتانے کی قیمت چاہتا ہوں، تو بات یہ ہے کہ اگر میں چاہتا تو تم کو ہرگز نہ بتاتا اور تم کو پتہ نہ چلتا۔ اب میں تم سے کہوں گا کہ زیادہ لالچ نہ کرو۔ اگر اتنی دولت کا سب سے چھوٹا حصہ بھی تم کو ملتا تو تم بغداد کے سب سے دولت مند انسان ہوتے۔ یہ بڑی دولت ہے، تم اب لالچ چھوڑ دو۔ جو کچھ اللہ نے دیا اس پر صبر اور شکر کرو۔ حالانکہ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ میں بے ایمانی کی بات کر رہا ہوں، لیکن میں نے پھر بھی درویش سے کہا، میں نے تمہاری بات مان لی، لیکن مجھے بتاؤ کہ تم اتنے بہت سے اونٹوں کو کس طرح چلا کر لے جاؤ گے؟ یہ کس طرح تمہارے قابو میں آئیں گے؟ اس لیے میری رائے ہے کہ تم 40 اونٹوں کے بجائے تھوڑے اونٹ لے جاؤ، اور تم کو تو خزانے کا بھید معلوم ہے۔ جب تمہارا جی چاہے تم پھر اس خزانے سے ہیرے جواہرات بھر کر لے جانا۔ درویش نے کہا، بابا عبداللہ تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے، مجھے اس بات کا بالکل خیال ہی نہ آیا۔ اچھا تم ایسا کرو کہ 40 کے بجائے سیدھے 20 اونٹوں کو چھانٹ کر مجھے دے دو، میں انہیں لے جاؤں گا۔ مجھے اس بات پر دل ہی دل میں بڑی حیرت ہوئی کہ درویش اتنی آسانی سے میری بات مان گیا۔ چنانچہ میں نے اس کے لیے 20 اونٹ چھانٹ دیے اور 60 کو لے کر بغداد کی طرف چل پڑا۔ وہ درویش بصرے کے راستے پر چلا گیا۔ ابھی میں تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ارے بلا وجہ یہ 20 اونٹ دیے، حالانکہ اس درویش کے قبضے میں تو سارے کا سارا خزانہ ہے۔ میں نے تو 20 اونٹوں کو کھویا اور اس پر لدے ہوئے ہیرے جواہرات سے الگ ہاتھ دھویا۔ اس خیال کا آنا تھا کہ میں نے اپنے اونٹوں کو ٹھہرایا اور بصرے کی سڑک کی طرف دوڑا۔ میں نے چیخ چیخ کر آواز دی۔ وہ درویش میری آواز سن کر ٹھہر گیا۔ میں نے اس کے نزدیک جا کر کہا، میرے بھائی میری ایک درخواست اور ہے، تم صرف 10 اونٹ رکھ لو، کیونکہ 20 کو تم چلا نہیں سکتے، یہ اونٹ تم کو بہت پریشان کریں گے۔ میں تو خیر ایک وقت میں 100 اونٹوں کو لے کر چل سکتا ہوں، کیونکہ میرا تو کام ہی یہی ہے۔ درویش نے فوراً میری بات مان لی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور مجھے 10 اونٹ دے دیے۔ اب میں 70 اونٹوں کا مالک تھا۔ امیر المومنین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے بڑے خزانے نے مجھے مطمئن کر دیا ہوگا۔ ہرگز نہیں، اس کے برخلاف میرا لالچ اور بڑھا۔ میں نے درویش کے ہاتھ کو چوما اور اس سے کہا، جب تم نے اتنا کچھ مجھے دے دیا تو پھر یہ 10 اونٹ بھی لے جا کر کیا کرو گے؟ جب چاہو تم اس خزانے سے لا سکتے ہو۔ درویش نے بڑی محبت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، تم سچ کہتے ہو، جاؤ سب اونٹ لے جاؤ اور ہمیشہ نیکی کے کام کرنا، غریب غربا کی مدد کرنا اور مجھے یاد کرنا۔ اب میں 80 کے 80 اونٹوں کا مالک ہو گیا تھا اور مارے خوشی کے پھولا نہیں سما رہا تھا، لیکن پھر بھی لالچ نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ میں نے کہا، بابا مجھے ایک بات کا افسوس ہے کہ تم نے اتنا کچھ دے دیا لیکن کچھ جواہرات اپنے لبادے میں چھپا کر رکھ لی۔
आखिर तुम उनका क्या करोगे? वो भी मुझे दे दो, मैं जिंदगी भर तुमको नहीं भूलूंगा। दरवेश ने खुशी के साथ वो जवाहरात भी अपने लुबादे से निकालकर मुझे दे दिए और बोला, भाई अब्दुल्ला, जो ये भी तुम्हारा है। अब बताओ तुम और क्या चाहते हो? मैंने कहा, तुमने आग में जो चीज डाली थी वो क्या थी? अगर तुम वो भी मुझे दे दो तो मैं तुम्हारा एहसान कभी ना भूलूंगा। दरवेश ने कहा, भाई अब्दुल्ला, ये एक अजीब चीज़ है। इसकी खासियत यह है, अगर इसको कोई बाईं आँख में लगा ले तो उसको सारी दुनिया के खजाने नजर आएंगे, और अगर गलती से दाहिनी आँख में लग जाए तो अंधा हो जाएगा। मैंने कहा, भाई मेरे, तुम इसको मेरी बाईं आँख में लगा दो ताकि मैं उसकी खासियत को देख सकूं और मुझे इसकी सच्चाई मालूम हो। दरवेश ने उसे मेरी बाईं आँख में लगा दिया। जैसे ही वो मेरी बाईं आँख में लगा, मुझे ऐसा लगा जैसे ज़मीन के सारे खजाने मेरी आंखों के सामने चले आ रहे हैं। कहीं सोना चांदी है तो कहीं हीरे जवाहरात भरे हुए हैं। मैं उन्हें देखता रहा। जब मैं थक गया तो मैंने अपनी दाहिनी आंख खोली। फिर मैं अपनी जगह पर खड़ा नजर आया। मैं बेहद खुश हुआ और अब मुझे दरवेश की करामात का सही अंदाजा हुआ। लेकिन मेरे दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि दरवेश झूठ बोल रहा है। दरअसल ये अगर मेरी दाहिनी आंख में भी लग जाए तो फिर ये सारे खजाने मेरे अपने हो जाएंगे। मैंने उससे कहा कि तुमने सब कुछ दे दिया, लेकिन इतनी सी कंजूसी क्यों कर रहे हो? इसे मेरी दाहिनी आंख में भी लगा दो। वो दरवेश जाने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि मैं तुमको हरगिज़ जाने न दूंगा जब तक तुम मेरे साथ ये आखिरी नेकी नहीं कर दोगे। दरवेश ने कहा, भाई अब्दुल्ला, तुम अपने साथ जुल्म कर रहे हो। अब भी मेरी बात मान लो, तुम अंधे हो जाओगे और जिंदगी भर ऐसे ही रहोगे। मैंने तुम्हारे साथ नेकी की है, ये बुराई मुझसे मत करवाओ। लेकिन मैं नहीं माना। आखिर दरवेश ने मेरी दाहिनी आंख में उसे लगा दिया। उसका लगाना था कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं अंधा हो गया। वो दरवेश मेरे 80 के 80 ऊँट हाँक कर ले गया। मैं चिल्लाता रहा कि मेरी आंखें ठीक कर दो, मगर उसने कोई जवाब न दिया। मैं जमीन पर पड़ा दर्द से चीख रहा था, मगर वहाँ कौन था जो मेरी सुनता? कुछ दिनों के बाद बसरे से एक काफिला आया। उसने मुझे वहाँ से उठाया और यहाँ तक पहुँचा दिया। उस रोज से मेरा दस्तूर है कि मैं यहाँ खड़े होकर भीख मांगता हूँ, और जो कोई भीख देता है उससे कहता हूँ कि मेरे थप्पड़ भी मारे, ताकि अपनी लालच की सजा मुझे बराबर मिलती रहे। ए अमीरुल मोमिनीन, ये है मेरी कहानी, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो लोग भी बैठे हैं वो मेरे एक एक थप्पड़ मारें, क्योंकि मेरी लालच की इससे कम और कोई सजा नहीं हो सकती। खलीफा ने कहा, वाकई तुमने जो काम किया है वो बुरा है, लेकिन तुमने अपनी गलती को महसूस कर लिया है, इसलिए मुझे यकीन है कि खुदा तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। आइंदा के लिए मैं ये इंतज़ाम करता हूँ कि खजाने से तुमको रोज़ाना 10 दीनार मिला करेंगे, ताकि तुम अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह गुजार सको। इसी तरह मौलवी साहब को भी 10 दीनार मिला करेंगे। उसके साथ ही ख्वाजा हसन और सैयदी नौमान को भी दरबार में बड़ा एजाज़ दिया और उनको इज़्ज़त के साथ रुखसत किया। और यूं ये कहानी ख़त्म हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारा हिस्सा बन जाए, ताकि ऐसी कहानियाँ जैसे ही मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह देखे वहाँ।